Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, this is a reading for the sign of Scorpio from 15th to 31st of December, and this is for you versus them. So, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please, जिनके साथ resonate होती है उन्हीं को रखना है. You can check your Sun, Moon, Rising, and Venus, and remember that energies can change or shift anytime. So, here I will see your energy, your person's energy, challenge, outcome, and give you some advice by the tarot. So let's see what's there for Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. What do we have for Scorpios, my love team? What is the energy of Scorpios from 15th to 31st of December? What's the energy of Scorpio? ओ माई गॉड, वी हैव गॉट द 3 ऑफ सॉर्ड्स स्कॉर्पियोज. तो आप लोग की जो एनर्जी इस समय है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड इट इज़ सेइंग आई सी थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर. यानी कि आप इस 3 ऑफ सॉर्ड्स को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, पेन अभी आपके अंदर है, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, कुछ ना कुछ झूठ बोला गया है, कुछ ना कुछ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है आपके साथ में, एंड यू आर इन अ वेरी वेरी पेनफुल एनर्जी, वेरी वेरी सैड स्कॉर्पियो. वाई? Okay, bottom of the deck we have the tower. So something is breaking down. Tower moment has already happened. Now, but आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज में लिखा हुआ है कि I see things exactly as they are. तो आप डिनाइल में नहीं है, which is good. That means you will heal yourself. Now let's see what is the energy of the partner of Scorpio, my love team. आप लोग अलग हो चुके हैं. Definitely you are separated from each other, because this also shows separation or even divorce. So let's see what is the energy of the person of Scorpio, my love team. What is the energy of the person of Scorpio? We have the High Priestess. My intuition guides me to the truth. High Priestess. तो आपके पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा दे आर साइलेंट टुवर्ड्स यू, और वो दे डोंट वांट टू टॉक, और उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है या फिर क्या हुआ है. सो दैट इज़ वाई दे आर हाईली हाईली इंट्यूटिव. वो अपने से गाइड होके चल रहे हैं, यानी कि अपने इमोशंस से गाइड होके चल रहे हैं, अपनी ट्रस्ट, अपनी गट फीलिंग से गाइड होके चल रहे हैं. तो जो उनकी गट फीलिंग कह रही है वही कर रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक यू आर द जजमेंट, वेकअप कॉल. उनको कोई ना कोई मेजर रियलाइजेशन हुआ है स्कॉर्पियो आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में. Now let's see what is the challenge between you two people. What is the challenge for Scorpio for the next 15 days? You could be dealing with a Cancer, Pisces, Scorpio. Mainly it is Pisces energy, so you could be dealing with Pisces, very strong. Let's see what is the challenge of Scorpio for the next 15 days. Challenge is the 4 of Pentacles. Now it is saying that I trust I am always safe and protected. Okay, so आप दोनों के बीच में साइलेंस है इस समय, और आप दोनों का ही हार्ट चक्र क्लोज्ड है. आप दोनों ही स्टबर्न एनर्जी में हैं. आप दोनों एक दूसरे के सामने खुलना नहीं चाहते हैं. आप लोग अपने एक दूसरे को इमोशंस एक्सप्रेस बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं, और आपको यू नो आप अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी पे फोकस्ड है. विद द लवर्स इन द रिवर्स वी हैव चॉइस इन लव. ओके, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग मी पाइसेस. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. What is the outcome for Scorpio in the next 15 days, my love team, from 15th to 31st of December? What is the outcome? The outcome is the Magician. Magician is Virgo and Gemini energy. Now this is saying I manifest perfectly what I desire. I manifest perfectly what I desire. तो Pisces आप लोग कुछ ना कुछ you could be dealing with the Pisces, Scorpios. आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप लोगों के अंदर टैलेंट है, और वो जो भी स्किल टैलेंट है उसको यूज़ करके आप कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं. यू हैव गॉट एवरीथिंग यू नीड टू बी सक्सेसफुल. Okay, this is what it is telling me.
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो यू आर नॉट गिविंग अप. आप बिल्कुल भी गिव अप करना नहीं चाहते हैं. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई. Let's clarify the 3 of swords. Please clarify the 3 of swords for Scorpio for the next 15 days. What is this 3 of swords? आप लोग इतना ज़्यादा क्यों पेन में हैं स्कॉर्पियोज, या आप लोग अलग हो चुके हैं? Yeah, we have got the Queen of Pentacles, 2 of Pentacles and the 5 of Pentacles. So yeah, somebody is juggling here with the 2 of Pentacles. डिसीजन लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप दोनों अलग हो चुके हैं. किसी ने किसी को छोड़ दिया है बिकॉज देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप. और शायद फाइनेंशियली भी फोकस कर रहे हैं आप स्कॉर्पियोज, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फोकस कर रहे हैं. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर एंडिंग दिस डिफ़िकल्ट साइकिल क्योंकि आप लोगों को लग रहा था बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो गया है. तो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर वर्क, योर मनी, योर सक्सेस. Now let's clarify the energy for the person of Scorpio, my love team. What is this High Priestess all about? Please clarify the High Priestess for Scorpio. We have got the Moon, the Ace of Wands, and we have got the 3 of Wands. So High Priestess with the Moon is like things are not clear. थिंग्स आर वेरी सीक्रेटिव. तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं. उनको ब्रांड न्यू बिगनिंग तो आपके साथ चाहिए, उनको एक नई शुरुआत चाहिए. आप दिस कुड बी, देयर आर 2 सिनेरियोज. या तो उनको आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ वो नया करना चाहते हैं. लॉट ऑफ फायर एनर्जी. So Aries, Leo, Sagittarius and lot of Pisces energy is also there. So they are not clear. They are not clear about the future of this relationship. That is why they are keeping silent. Scorpios, frankly speaking, they are very, very silent and they don't want to, you are not talking to each other, and also they are not clear about the future of this relationship. They have lot of insecurities. उनको बहुत सारे fears है, डर है इस रिश्ते को लेकर के. They are not very clear. So now let's clarify your challenge, which is the 4 of Pentacles. What is this 4 of Pentacles for Scorpio for the next 15 days? We have got the Judgment, we have got the Death and we have got the Page of Cups. तो यह आपकी सिचुएशन, आप लोगों की रिलेशनशिप एंड हो चुकी है. इट इज़ या तो एंड हो चुकी है या इट इज़ गॉन अ बिग चेंज. और ये आपको फाइनल कॉल लेना है इस पर. यू स्टिल हैव टू मेक अ डिसीजन. आप लोग पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं और शायद आप लोग एक दूसरे से ये चाहते हैं कि आपसे कोई अपोलोजाइज़ करे या कोई भी अपने आप से पहले अप्रोच करे. हु विल टेक द फर्स्ट स्टेप. तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर दैट एंड डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप इज़ अंडरगॉन स्कॉर्पियो, लॉट्स ऑफ स्कॉर्पियो एनर्जी, योर एनर्जी ओनली. वी हैव ऑल्सो undergone eclipses, so your situation, this thing has already changed. Again we have got the 4 of Pentacles at the bottom of the deck, Scorpios. So it has undergone a big change और यही आपका चैलेंज है. आप डिसीजन लेने की ज़रूरत है. You have to make the final decision, a final call. Now let's clarify the Magician for Scorpio for the next 15 days. Yeah, we have got the Hermit, we have got the 8 of Cups and we have got the Emperor. तो आप लोग जो है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं. Hermit is all about getting lessons एंड एक्सपीरियंसेस से आते हैं, इंसान को सबक मिलता है. एंड कहीं ना कहीं आप मे बी यू और मे बी दी अदर पर्सन, दिस इज़ द आउटकम मैजिशियन. तो आप में से कोई तो एक पर्सन है जो कि ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि शायद इस रिश्ते में नई शुरुआत हो सके या कोई एक पर्सन वापस आ सके. आप दोनों में से कोई तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है. दे आर मैच्योर्ड अ लॉट ऑल्सो. तो दे आर मैनिफेस्टिंग कि किंग ऑफ कप्स की शायद आप वापस आ जाए उनकी लाइफ पे. दैट्स व्हाट इट इज़ शोइंग मी नाउ. Let's see what's the guidance. Please give me the guidance for Scorpio for the next 15 days. So the guidance is the Moon, the 9 of Cups and the 5 of Wands. 5 of Wands, I stand my ground and look for peace.
I trust in the flow of life, and Nine of Cups is after that the moon. My intuition guides me to the right direction. तो स्कॉर्पियो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. विद द मून कार्ड आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उनको दूर करें, और किसी भी तरीके के ड्रामा या किसी भी तरीके के पावर स्ट्रगल कंपटीशन में ना पड़े, क्योंकि इसमें कई सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. टू डोंट बी एंड बी हैप्पी ऑन योर ओन. नाइन ऑफ कप्स इस थोड़ी सेल्फिश एनर्जी हो सकती है कि आप अपने बारे में सोचें पहले. व्हाट यू हैव टू डू, first help yourself and then help others, and then only you can make a final decision what you have to do, because judgment we have, that is you have to take a final call, और आप वो ले नहीं पा रहे हैं, तो you have to take a final call. और वो तभी हो सकता है जब आप इस किसी भी तरीके के ड्रामा में ना पड़े और चीज़ों को क्लियरली देखें. आपने जो भी फियर्स एंड सिक्योरिटीज़ को उनको ठीक से देखें. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द लव ऑरेकल कार्ड फॉर यू स्कॉर्पियोज फॉर द नेक्स्ट 15 days from 15th to 31st of December. Let's see. Okay. प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन चॉइस. या आपको चॉइस करने की ज़रूरत है, एंड वही मैंने कहा, फाइनल कॉल, फाइनल डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, वेदर यू वांट टू कैरी ऑन विद दिस रिलेशनशिप और नॉट. योर एंड टेलीपैथिक आ रहा है, योर काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू. तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस. सो इट इज़ रिटन हियर, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन को चूज़ करके आगे बढ़ें. This is what we have for you, Scorpios, and if you like this, then please hit the like button, and I would be very grateful and thankful to you, and I hope you got something from it, and see you next time, and bye bye.